صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ حدیث نمبر 4651 ترجمہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے بیان نے بیان کیا، ان سے وبرا نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، کہا کہ ابن عمر ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر۔ اے نبی، مومنوں کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ حدیث نمبر 4652 ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اُنَیکَن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ 20 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی۔ اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ 100 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی حرز المؤمنین علی القتال اُنَیکَن منکم عشرون صابرون کہ اے نبی، مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔ سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شبرمہ کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب حدیث نمبر 4653 ترجمہ سورت برات کی تفسیر۔ ولیجہ وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے اندر داخل کی جائے، یہاں مراد بھی دی ہے۔ الشقاء سفر یا دور دراز راستہ۔ خبال کے معنی فساد اور خبال موت کو بھی کہتے ہیں۔ ولا تفتنی یعنی مجھ کو مت جھڑک، مجھ پر خفا مت ہو۔ کرہا اور کرہا دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی زبردستی ناخوشی سے۔ مدفع گھس بیٹھنے کا مقام، مثلاً سرنگ وغیرہ۔ یجمعون دوڑتے جائیں۔ متفقات یہ اتفقت انقلبت بہا الارض سے نکلا ہے، یعنی اس کی زمین الٹ دی گئی۔ آہوئے یعنی اس کو ایک گرے میں دھکیل دیا۔ عدن کا معنی ہمیشگی کے ہیں۔ عرب لوگ بولتے ہیں ادنت بارز یعنی میں اس سرزمین میں رہ گیا۔ اس سے مدن کا لفظ نکلا ہے، جس کا معنی سونے یا چاندی یا کسی اور دھات کی کان کے ہیں۔ مدن صدق یعنی اس سرزمین میں جہاں سچائی اگتی ہے۔ الخالف خالف کی جمع ہے۔ خالف وہ جو مجھ کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہا، اسی سے ہے یہ حدیث۔ یخلفا فی الغابرین یعنی جو لوگ میت کے بعد باقی رہ گئے تو ان میں اس کا قائم مقام بن یعنی ان کا محافظ اور نگہبان ہو۔ اور الخالف سے عورتیں مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ یخلفہ کی جمع ہوگی، جیسے فعالہ کی جمع فعل آتی ہے۔ اگر خالف مذکر کی جمع ہو تو یہ شاذ ہوگی، ایسے مذکر کی زبان عرب میں 2 ہی جمع آتی ہیں، جیسے فارس اور فوارس اور حالق اور حولق۔ الخیرات خیرہ کی جمع ہے، یعنی نیکیوں بھلائیوں۔ مرجعون جھیل میں دے گئے۔ الشفا کہتے ہیں شفیر کو، یعنی کنارہ۔ الجرف وہ زمین جو ندی نالوں کے بہاؤ سے کھد جاتی ہے۔ ہار گرنے والی اسی سے ہے۔ طہورت البر یعنی کنگرگی۔ لاوا یعنی خدا کے خوف سے اور ڈر سے آہوازاری کرنے والا، جیسے شاعر مشقب ابدی کہتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر۔ اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، اور اب عہد کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ حدیث نمبر 4654 ترجمہ ہم سے ابوالولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابوا سحاق نے کہ میں نے برا بن عازب سے سنا، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور سب سے آخر میں سورت برات نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر۔ اے مشرکو، زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی کافروں کو رسو کرنے والا ہے۔ سہوا یعنی سیرو یعنی چلو فرو۔ حدیث نمبر 4655 ترجمہ
हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कहा, और मुझे हमीद बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने खबर दी कि अबू हरीरा ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने इस हज के मौका पर, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमीर बनाया था, मुझे भी ऐलान करने वालों में रखा था, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर में इसलिए भेजा था कि ऐलान कर दें कि आइंदा साल से कोई मशरिक हज करने ना आए और कोई शख्स भी अल्लाह का तवाफ नंगे होकर ना करे। हमीद बिन अबदाल रहमान ने कहा कि फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को पीछे से भेजा और इन्हीं सूरत बरात के अहकाम के ऐलान करने का हुक्म दिया। अबू हरीरा ने कहा, चुनाचा हमारे साथ अली ने भी यौम नहर ही में सूरत बरात का ऐलान किया और इसका कि आइंदा साल से कोई मशरिक हज ना करे और ना कोई नंगे होकर तवाफ करे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर और ऐलान किया जाता है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से लोगों के सामने बड़े हज के दिन के अल्लाह और इसका रसूल मशरिकों से बेजार रहीं, फिर भी अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर तुम मुँह फैलाता ही रहे तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, और काफिरों को अजाब दर्दनाक की खुशखबरी सुना दीजिए। आज़नहम आइल में हम यानी उनको आगाह किया। हदीस नंबर 4656। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा मुझको हमीद बिन अबदाल रहमान ने खबर दी कि अबू हरीरा ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने हज के मौका पर, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमीर बनाया था, मुझको उन ऐलान करने वालों में रखा था जिन्हें अपने यौम नहर में भेजा था। मुनी में ये ऐलान करने के लिए कि इस साल के बाद कोई मशरिक हज करने ना आए और ना कोई शख्स भी अल्लाह का तवाफ नगा होकर करे। हमीद ने कहा कि फिर पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि सूरत बरात का ऐलान कर दें। अबू हरीरा ने कहा कि अली ने हमारे साथ मुनी के मैदान में 10वीं तारीख में सूरत बरात का ऐलान किया और ये कि कोई मशरिक आइंदा साल से हज करने ना आए और ना कोई भी अल्लाह का तवाफ नगा होकर करे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत इल्ला अल्ज़ीना अहदतम मन अल-मशरिकीन की तफसीर। हदीस नंबर 4657। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हें हमीद बिन अबदाल रहमान ने खबर दी और इन्हें अबू हरीरा ने खबर दी कि अबू बकर ने इस हज के मौका पर, जिसका इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया था, हज तलविदा से 1 साल पहले 9 दो चश्मीहे में इन्हें भी उन ऐलान करने वालों में रखा था जिन्हें लोगों में आपने ये ऐलान करने के लिए भेजा था कि आइंदा साल से कोई मशरिक हज करने ना आए और ना कोई भी अल्लाह का तवाफ नगा होकर करे। हमीद ने कहा कि अबू हरीरा की इस हदीस से मालूम होता है कि यौम नहर बड़े हज का दिन है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर कफर के सरदारों से जिहाद करो अहद तोड़ देने की सूरत में अब उनकी कस्में बातिल हो चुकी हैं। हदीस नंबर 4658। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़ैद बिन वहब ने बयान किया कि हम हुज़ैफ़ा बिन यमान की खिदमत में हाजिर थे। इन्होंने कहा, ये आयत जिन लोगों के बारे में उतरी उनमें से अब सिर्फ 3 शख्स बाकी हैं, उसी तरह मुनाफ़िक़ों में से भी अब 4 शख्स बाकी हैं। इतने में एक देहाती कहने लगा, आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हमें उन लोगों के मुताल्लिक़ बताइए कि उनका क्या हश्र होगा जो हमारे घरों में छीन कर के अच्छी चीज़ें चुरा कर ले जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये लोग फासिक बदकार हैं। हाँ, इन मुनाफ़िक़ों में 4 के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा है, और एक तो इतना बूढ़ा हो चुका है कि अगर ठंडा पानी पीता है तो इसकी ठंड का भी उसे पता नहीं चलता। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, और जो लोग कि सोना और चांदी ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, आप इन्हें एक दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। हदीस नंबर 4659। तर्जुमा हमसे हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान अरज ने बयान किया, और इन्होंने कहा कि मुझसे अबू हरीरा ने बयान किया, और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुम्हारा ख़जाना जिसमें ज़कात ना दी गई हो क़ियामत के दिन गंजे नाग की शक्ल इख्तियार करेगा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, और जो लोग कि सोना और चांदी ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, आप इन्हें एक दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें।
حدیث نمبر 4660 ترجمہ ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے زید بن وہب نے بیان کیا کہ میں مقام ربضہ میں ابوذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کو پسند کیا؟ فرمایا کہ ہم شام میں تھے، مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاوی میں اختلاف ہو گیا، میں نے یہ آیت پڑھی والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم کے اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو معاوی کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے جب وہ زکوٰۃ دیتے رہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر اس دن کو یاد کرو جس دن سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے جنہوں نے اس خزانہ کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جسے تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حدیث نمبر 4661 ترجمہ احمد بن شبیب بن سعید نے کہا کہ ہم سے میرے والد شبیب بن سعید نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکورہ بالا آیت زکوٰۃ کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی، پھر جب زکوٰۃ کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے مالوں کو پاک کر دی۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر بے شک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 ہی مہینے ہیں، جس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، قیم بمعنی القائم جس کے معنی درست اور سیدھے کے ہیں۔ حدیث نمبر 4662 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبدال الرحمن بن ابی بکرہ نے، ان سے ان کے والد ابو بکرہ نفی بن حارث نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حید پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجۃ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر جبکہ 2 میں سے ایک وہ تھے دونوں غار میں موجود تھے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھا کہ فکر نہ کر اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 4663 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن محمد جفی نے بیان کیا کہا ہم سے حبان بن حلال باہلی نے بیان کیا کہا ہم سے حمام بن یحیی نے بیان کیا کہا ہم سے ثابت نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو بکر صدیق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق گھبرا گئے اور بولے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے ان 2 آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر جبکہ 2 میں سے ایک وہ تھے دونوں غار میں موجود تھے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھا کہ فکر نہ کر اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 4664 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن محمد بن جفی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام تھے، ان کی والدہ اسما بنت ابو بکر تھیں، ان کی خالہ عائشہ تھیں، ان کے نانا ابو بکر تھے اور ان کی دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے سفیان ابن عیینہ سے پوچھا کہ اس روایت کی سند کیا ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا حدثنا ہم سے حدیث بیان کی، لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جریج وہ نہ بیان کر سکے۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر جبکہ 2 میں سے ایک وہ تھے دونوں غار میں موجود تھے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھا کہ فکر نہ کر اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 4665 ترجمہ
मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही इब्न मुअय्यन ने बयान किया, कहा हमसे हुज्जाज बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलीका ने बयान किया कि इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर के दरमियान बैत का झगड़ा पैदा हो गया था। मैं सुबह को इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, आप अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से जंग करना चाहते हैं, इसके बावजूद कि अल्लाह के हरम की बेहुरमती होगी। इब्न अब्बास ने फरमाया, मुआज़ला, ये तो अल्लाह ताला ने इब्न ज़ुबैर और बनु उमैया ही के मुक़द्दर में लिख दिया है कि वो हरम की बेहुरमती करें। अल्लाह की कसम, मैं किसी सूरत में भी इस बेहुरमती के लिए तैयार नहीं हूँ। इब्न अब्बास ने बयान किया कि लोगों ने मुझसे कहा था कि इब्न ज़ुबैर से बैत कर लो। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी खिलाफत को तस्लीम करने में क्या तअम्मुल हो सकता है। उनके वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी थे, आपकी मुराद ज़ुबैर बिन अवाम से थी। उनके नाना साहब गार थे, इशारा अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ था। उनकी वालिदा साहब नताक़ीन थीं यानी असमा। उनकी खाला उम्मुल मोमिनीन थीं, मुराद आयशा से थी। उनकी फूफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा थीं, मुराद खदीजा से थी। इब्न अब्बास की मुराद उन बातों से ये थी कि वो बहुत सी खूबियों के मालिक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उनकी दादी हैं, इशारा सफ़ी की तरफ था। इसके अलावा वो ख़ुद इस्लाम में हमेशा साफ़ किरदार और पाक दामन रहे और कुरान के आलम हैं और अल्लाह की कसम, अगर वो मुझसे अच्छा बर्ताव करें तो उनको करना ही चाहिए, वो मेरे बहुत करीब के रिश्तेदार हैं, और अगर वो मुझ पर हुकूमत करें तो खैर हुकूमत करें, वो हमारे बराबर के इज़्ज़त वाले हैं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने तो तौयत, उसामा और हमीद के लोगों को हम पर तरजीह दी है। उनकी मुराद मुख्तलिफ कबाइल यानी बनु असद, बनु तौयत, बनु उसामा और बनु असद से थी। इधर इब्न अबी अलास बड़ी उम्दगी से चल रहा है, यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान मुसलसल पेशकदमी कर रहा है और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने इसके सामने दम दबा ली है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। जबकि दो में से एक वो थे, दोनों गार में मौजूद थे जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे था कि फ़िक्र न कर, अल्लाह पाक हमारे साथ है। हदीस नंबर 4666। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन उबैद बिन मैमून ने बयान किया, कहा हमसे ईसा बिन यूनुस ने, उनसे उम्र बिन सईद ने, इन्हें इब्न अबी मलीका ने खबर दी कि हम इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने कहा कि इब्न ज़ुबैर पर तुम्हें हैरत नहीं होती, वो अब खिलाफत के लिए खड़े हो गए हैं, तो मैंने इरादा कर ली कि उनके लिए मेहनत मशक्क़त करूँगा कि ऐसी मेहनत और मशक्क़त मैंने अबू बकर और उम्र के लिए भी नहीं की, हालांकि वो दोनों उनसे हर हैसियत से बेहतर थे। मैंने लोगों से कहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की औलाद में से हैं, ज़ुबैर के बेटे और अबू बकर के नौसे, खदीजा के भाई के बेटे, आयशा की बहन के बेटे। लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने किया वो मुझसे गुरूर करने लगे। इन्होंने नहीं चाहा कि मैं उनके ख़ास मुसाहबों में रहूं। अपने दिल में कहा, मुझको हरगिज़ ये गुमान ना था कि मैं तो उनसे ऐसी आजिज़ी करूँगा और वो इस पर भी मुझसे राज़ी ना होंगे। खैर अब मुझे उम्मीद नहीं कि वो मेरे साथ भलाई करेंगे, जो होना था वो हुआ। अब बनी उमैया जो मेरे चचाजाद भाई हैं, अगर मुझ पर हुकूमत करें तो ये मुझको और उनके हुकूमत करने से ज़्यादा पसंद है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। नीज़ उन मुस्लिमों का भी हक़ है जिनकी दिलजोई मंजूर है। हदीस नंबर 4667। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हें उनके वालिद सईद बिन मुसर्रुख ने, इन्हें इब्न अबी नम ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया तो आपने 4 आदमियों में उसे तकसीम कर दी जो 9 मुस्लिम थे, और फरमाया कि मैं ये माल देकर उनकी दिलजोई करना चाहता हूँ। इस पर बनु तमीम का एक शख्स बोला कि आपने इंसाफ नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीन से बाहर हो जाएंगे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत अलज़ीन यलमज़ुन अलमतुइन मन अलमुमिनीन की तफसीर। हदीस नंबर 4668। तर्जुमा, मुझसे अब्बू मोहम्मद बशर बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं सुलेमान आमिश ने, इन्हीं अब्बू वाइल ने और उनसे अबू मसूद अंसारी ने बयान किया कि जब हमें खैरात करने का हुक्म हुआ तो हम मजदूरी पर बोझ उठाते और इसकी मजदूरी सदका में दे देते। चुनाचा अबू वकील उसी मजदूरी से आधा सा खैरात लेकर आए और एक दूसरे सहाबी अबदाल रहमान बिन ऑफिस से ज़्यादा लाए। इस पर मुनाफिकों ने कहा कि अल्लाह को इस यानी अकील के सदका की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस दूसरे अबदाल रहमान बिन औफ ने तो महज दिखावे के लिए इतना बहुत सा सदका दिया है।
चुनाचा ये आयत नाजल हुई अलजीन यलमज़ून अलमतूइन मन अलमुमनीन फ़ी अलसदक़ात वालजीन ला यजदून इल्ला जहदहम कि ये ऐसे लोग हैं जो सदक़ात के बारे में नफ़ल सदक़ा देने वाले मुसलमानों पर तन करते हैं और ख़ुसूसन उन लोगों पर जिन्हें बजज़ उनकी मेहनत मजदूरी के कुछ नहीं मिलता। आखिर आयत तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत अलजीन यलमज़ून अलमतूइन मन अलमुमनीन की तफसीर। हदीस नंबर 4669। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्बासामा हमाद बिन उसामा से पूछा। आप हज़रात से ज़ायदा बिन क़दामा ने बयान किया था कि उनसे सुलेमान ने, उनसे शक़ीक़ ने और उनसे अबू मसूद अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा की तरग़ीब देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा मजदूरी करके लाते और बड़ी मुश्किल से एक मद का सदक़ा कर सकते, लेकिन आज इन्हीं में बाज़ ऐसे हैं जिनके पास लाखों दिरहम हैं। गालिबन उनका इशारा खुद अपनी तरफ था। हमाद ने कहा, हम सच है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप उनके लिए 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करेंगे जब भी अल्लाह इन्हें नहीं बख्शेगा। हदीस नंबर 4670। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे अब्बासामा ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन उमरी ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम्र ने कि जब अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक का इंतकाल हुआ तो इसके लड़के अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह जो पुख्ता मुसलमान थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप अपनी कमीस उनके वालिद के कफन के लिए इनायत फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीस इनायत फरमाई। फिर इन्होंने अर्ज़ की कि आप नमाज जनाजा भी पढ़ा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ गए। इतने में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आपको इससे मना भी फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, फरमाया है इस्तग़फ़र लहम आवला तस्तग़फ़र लहम उन तस्तग़फ़र लहम 70 मरा कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें ख्वाह ना करें। अगर आप उनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करेंगे तब भी अल्लाह इन्हें नहीं बख्शेगा। इसलिए मैं 70 मरतबा से भी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूँगा। मुमकिन है कि अल्लाह ताला ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने से मुआफ़ कर दे। उम्र बोले, लेकिन ये शख्स तो मुनाफ़िक है। इब्न उम्र ने बयान किया कि आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया, वला तसल अली आहद मनहम मात आबदा वला तक़म अली क़ब्रा के, और इनमें से जो कोई मर जाए इस पर कभी भी नमाज ना पढ़े और ना इसकी कब्र पर खड़ा होइए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी, आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप उनके लिए 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करेंगे जब भी अल्लाह इन्हें नहीं बख्शेगा। हदीस नंबर 4671। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने और इनके अलावा अबवसाला अब्दुल्लाह बिन सालेह ने बयान किया कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और उनसे इब्न अब्बास ने, उनसे उन्होंने जब अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल की मौत हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो मैं जल्दी से खिदमत नबवी में पहुंचा और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप इब्न नबी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाने लगे, हालांकि उसने फलन दिन इस तरह की बातें इस्लाम के खिलाफ की थीं। उन्होंने बयान किया कि मैं इसकी कही हुई बातें एक एक करके पेश करने लगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबसम करके फरमाया कि उम्र, मेरे पास से हट जाओ और सफ़ में जाके खड़े हो जाओ। मैंने इसरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इख्तियार दिया गया है, इसलिए मैंने इसके लिए इस्तग़फ़ार करने और इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने ही को पसंद किया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने से इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी तो मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूँगा। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और वापस तशरीफ़ लाए। थोड़ी देर अभी हुई थी कि सूरत बरात की 2 आयतें नाज़िल हुईं, वला तसल अली आहद मनहम मात आबदा के, उनमें से जो कोई मर जाए इस पर कभी भी नमाज ना पढ़े। आखिर आयत वहम फासकून तक। उन्होंने बयान किया कि बाद में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी इस दर्जा जुरत पर ख़ुद भी हैरत हुई और अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानने वाले हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए नबी,
अगर उनमें से कोई मर जाए तो आप इस पर कभी भी नमाज जनाजा ना पढ़िए और ना इसकी दुआए मग़फ़िरत के लिए कब्र पर खड़े होइए, बेशक इन्होंने अल्लाह और रसूल के साथ कफ़र किया है और वो फासिक मरे हैं। हदीस नंबर 4672। तर्जुमा। मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन नियाज़ ने, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन अबी का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे अब्दुल्लाह बिन अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना करता इनायत फरमाया और फरमाया कि इस करते से उसे कफन दिया जाए। फिर आप इस पर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने आपका दामन पकड़ लिया और अर्ज़ किया, आप इस पर नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, हालांकि ये मुनाफिक है, अल्लाह ताला भी आपको उनके लिए इस्तग़फ़ार से मना कर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है। या रावी ने खैरनी की जगह लफ्ज़ आखबरनी नकल किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस्तग़फ़र लहम अवला तस्तग़फ़र लहम उन तस्तग़फ़र लहम सबईन मरा फ़लन यग़फ़र अल्लाह लहम, कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें ख्वाह ना करें। अगर आप उनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करेंगे जब भी अल्लाह इन्हें नहीं बख्शेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 70 मरतबा से भी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूँगा। उन्होंने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज पढ़ी और हमने भी उनके साथ पढ़ी। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, वला तसल अली अहद मनहम मा ताबदा वला तकम अली कब्रा इनहम की फरवा बालला वरसोला वमातू वहम फासक़ून के, और इनमें से जो कोई मर जाए आप इस पर कभी भी जनाजा ना पढ़ें और ना इसकी कब्र पर खड़े हों, बेशक इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के साथ कफ़र किया है और वो इस हाल में मरे हैं कि वो नाफरमान थे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। अनकरीब ये लोग तुम्हारे सामने जब तुम उनके पास वापस लौटोगे अल्लाह की कसम खाएंगे ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़े रहो, तुम उनको उनकी हालत पर छोड़े रहो, बेशक ये गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, बदला में उन अफ़ाल के जो वो करते रहे हैं। हदीस नंबर 4673। तर्जुमा। हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने बयान किया कि इन्होंने कब बिन मालिक से उनके ग़ज़वा तबूक में शरीक न हो सकने का वाक़या सुना। इन्होंने बतलाया, अल्लाह की कसम, हिदायत के बाद अल्लाह ने मुझ पर इतना बड़ा और कोई इनाम नहीं किया जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोलने के बाद ज़ाहिर हुआ था कि इसने मुझे झूठ बोलने से बचाया, वरना मैं भी उसी तरह हलाक हो जाता जिस तरह दूसरे लोग झूठी मज़रतें बयान करने वाले हलाक हुए थे। और अल्लाह ताला ने उनके बारे में वही नाज़िल की थी, सहलफ़ुन बालला लकम अज़ा इनक़लबतम अलैहिम, के अंतरीब ये लोग तुम्हारे सामने जब तुम उनके पास वापस जाओगे अल्लाह की कसम खा जाएंगे। आखिर आयत अल-फ़ासिक़ीन तक। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, इन्होंने मिले जले अमल के, कुछ भले और कुछ बुरे, करीब है कि अल्लाह उन पर नज़र रहमत फरमाए, बेशक अल्लाह बहुत ही बड़ा बख्शिश करने वाला और बहुत ही बड़ा मेहरबान है। हदीस नंबर 4674। तर्जुमा। हमसे मुमिल बिन हश्शाम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे औफ ने बयान किया, कहा हमसे अबू रजा ने बयान किया, कहा हमसे समरा बिन जंदब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि रात ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए और मुझे उठाकर एक शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। वहाँ हमें ऐसे लोग मिले जिनका आधा बदन निहायत खूबसूरत, इतना कि किसी देखने वाले ने ऐसा हुस्न ना देखा होगा, और बदन का दूसरा आधा हिस्सा निहायत बदसूरत था, इतना कि किसी ने भी ऐसी बदसूरती नहीं देखी होगी। दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा, जाओ और इस नहर में गोता लगाओ। वो गए और नहर में गोता लगा आए। जब वो हमारे पास आए तो उनकी बदसूरती जाती रही और अब वो निहायत खूबसूरत नज़र आते थे। फिर फरिश्तों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत अदन है और आपका मकान यहीं है। जिन लोगों को अभी आपने देखा कि जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत था और आधा बदसूरत, तो ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे सब काम किए थे और अल्लाह ताला ने इन्हें मुआफ़ कर दी था। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। नबी और जो लोग ईमान लाए उनके लिए इजाज़त नहीं कि वो मशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, अगरचे वो उनके क़राबतदार हों, जबकि उन पर ज़ाहिर हो जाए कि वो दोज़खी हैं। हदीस नंबर 4675। तर्जुमा।
हमसे इसहाक बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सईद बिन मुसैयब ने और उनसे उनके वालिद मुसैयब बिन हज़न ने कि जब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वहाँ अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप एक बार ज़बान से कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दीजिए, मैं उसी को आपकी निजात के लिए वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर लूँगा। इस पर अबू जहल और अब्दुल्लाह अबी उमैया कहने लगे, अबू तालिब, किया आप अब्दाल मतलब के दीन से फिर जाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं आपके लिए बराबर मग़फ़िरत की दुआ मांगता रहूँगा जब तक मुझे इससे रोक ना दिया जाए। तो ये आयत नाज़िल हुई, मा कान लनबी वालज़ीन आमन व आन यस्तग़फ़िर व लिलमुशरिकीन वलौ कान व औली क़ुरबी मिन बाद मा तबीन लहुम अन्नहुम अस्हाब अल जहीम की नबी और ईमान वालों के लिए जायज़ नहीं कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, अगरचे वो मुशरिकीन रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जब उन पर यह ज़ाहिर हो चुका कि वो यकीनन अहल दोज़ख से हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक अल्लाह ने नबी पर मुहाजिरीन व अंसार पर रहमत फरमाई, वो लोग जिन्होंने नबी का साथ तंगी के वक्त जंग तबूक में दिया, बाद उसके कि उनमें से एक गिरोह के दिल में कुछ तज़ल्ज़ल पैदा हो गया था। फिर अल्लाह ने उन लोगों पर रहमत के साथ तवज्जो फरमा दी, बेशक वो उनके हक़ में बड़ा ही शफ़ीक़ बड़ा ही रहम करने वाला है। हदीस नंबर 4676। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने खबर दी। दूसरी सनद। अहमद बिन सालेह ने बयान किया कि हमसे अनबसा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा मुझको अबदाल रहमान बिन कब ने खबर दी, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन कब ने खबर दी कि उनके वालिद कब बिन मालिक जब नाबीना हो गए तो उनके बेटों में यही उनको रास्ते में साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने बयान किया कि मैंने कब बिन मालिक से उनके वाक़या के सिलसिले में सुना जिसके बारे में आयत वल्ली अल-सलासा अल-ज़ीन खलफ़वा नाज़िल हुई थी। आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि अपनी तौबा के कबूल होने की खुशी में अपना तमाम माल अल्लाह और इसके रसूल के रास्ते में खैरात करता हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अपना कुछ थोड़ा माल अपने पास ही रहने दो, यह तुम्हारे हक़ में भी बेहतर है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और उन तीनों पर भी अल्लाह ने तवज्जो फरमाई जिनका मुकद्दमा पीछे को डाल दिया गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन उन पर बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी और वो खुद अपनी जानों से तंग आ गए और इन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजस उसी की तरफ के, फिर उसने उन पर रहमत से तवज्जो फरमाई ताकि वो भी तौबा करके रुजू करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बड़ा ही मेहरबान है। हदीस नंबर 4677। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन नसर नेशापुरी ने बयान किया, कहा हमसे अहमद बिन अबी शोएब ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन अयन ने बयान किया, कहा हमसे इसहाक बिन राशिद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने खबर दी, उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद कब बिन मालिक से सुना। वो उन 3 सहाबा में से थे जिनकी तौबा कबूल की गई थी। इन्होंने बयान किया कि 2 ग़ज़वा असवद यानी ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा बदर के सिवा और किसी ग़ज़वे में कभी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से नहीं रुका था। इन्होंने बयान किया चाशत के वक्त जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने सच बोलने का पुख्ता इरादा कर ली और आपका सफ़र से वापस आने में मामूल ये था कि चाशत के वक्त ही आप मदीना पहुँचते थे और सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकत नमाज पढ़ते। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और मेरी तरह हज़र बयान करने वाले 2 और सहाबा से दूसरे सहाबा को बातचीत करने से मना कर दी। हमारे अलावा और भी बहुत से लोग जो ज़ाहिर में मुसलमान थे इस ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए, लेकिन आपने उनमें से किसी से भी बातचीत की मुमानत नहीं की थी। चुनाचा लोगों ने हमसे बातचीत करना छोड़ दिया। मैं उसी हालत में ठहरा रहा। मुआमला बहुत तूल पकड़ता जा रहा था। इधर मेरी नज़र में सबसे अहम मुआमला ये था कि अगर कहीं इस अरसा में मैं मर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाए तो अफसोस लोगों का यही तर्ज अमल मेरे साथ फिर हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा, ना मुझसे कोई गुफ्तगू करेगा और ना मुझ पर नमाज जनाजा पढ़ेगा। आखिर अल्लाह ताला ने हमारी तौबा की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाज़िल की जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सलमा के घर में तशरीफ़ रखते थे। सलमा का मुझ पर बड़ा एहसान व करम था और वो मेरी मदद किया करती थीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमा कब की तौबा कबूल हो गई। इन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं उनके यहाँ किसी को भेजकर ये खुशखबरी ना पहुँचवा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खबर सुनते ही लोग जुमा हो जाएंगे और सारी रात तुम्हें सोने नहीं देंगे। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ने के बाद बताया कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खुशखबरी सुनाई तो आपका चेहरा मुबारक मुनव्वर हो गया जैसे चंद का टुकड़ा हो, और ग़ज़वा में न शरीक होने वाले दूसरे लोगों से जिन्होंने माज़रत की थी और उनकी माज़रत कबूल भी हो गई थी। हम 3 सहाबा का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल होने के मुताल्लिक़ वही नाज़िल की, लेकिन जब उन दूसरे ग़ज़वा में शरीक न होने वाले लोगों का ज़िक्र किया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोला था और झूठी माज़रत की थी, तो इस दर्जा बुराई के साथ किया कि किसी का भी इतनी बुराई के साथ ज़िक्र न किया होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यतज़रून अलैकुम अज़ा रजतम अलैहिम कुल ला तअतज़रवा लिन्नूम लकम क़द नबाना अल्लाह मन अख़बारकम वसीरी अल्लाह अमलकम वरसोला कि ये लोग तुम्हारे सबके सामने अज़र पेश करेंगे। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो आप कह दें कि बहाने ना बनाओ, हम हरगिज़ तुम्हारी बात ना मानेंगे। बेशक हमको अल्लाह तुम्हारी खबर दे चुका है और अनक़रीब अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारा अमल देख लेंगे। आखिर आयत तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। हदीस नंबर 4678। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने। वो कब बिन मालिक को साथ लेकर चलते थे। जब वो नाबीना हो गए थे, अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैंने कब बिन मालिक से सुना, वो ग़ज़वा तबूक में अपनी गैर हाज़िरी का किस्सा बयान कर रहे थे। कहा कि अल्लाह की कसम, सच बोलने का जितना उम्दा फल अल्लाह ताला ने मुझे दिया, किसी को ना दिया होगा। जब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने इस बारे में सच्ची बात कही थी, इस वक्त से आज तक कभी झूठ का इरादा भी नहीं किया, और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल की थी, लक़द ताबल्लाह अली नबी वाल मुहाजिरीन की, बेशक अल्लाह ने नबी पर और मुहाजिरीन व अंसार पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाई। आखिर आयत वकूनवा मअल सादिकीन तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब हदीस नंबर 4679। तर्जुमा। बाब सूरत यूनुस की तफसीर। और इब्न अब्बास ने कहा कि फ़ाख्तलत का मानी यह है कि पानी बरसने की वजह से ज़मीन से हर कस्म का सब्ज़ा उगा। यानी ईसाई कहते हैं कि अल्लाह ने एक बेटा बना रखा है। सुभान अल्लाह, वो बेनियाज है। और ज़ैद बिन असलम ने कहा कि आन लहम कदम सद्दिक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। और मुजाहिद ने बयान किया कि इससे भलाई मुराद है। तलक आयत में तलक जो हाजिर के लिए है, मुराद इससे गायब है, यानी यह कुरान की निशानियाँ हैं। उसी तरह इस आयत हत्ता अज़ा कुंतम फ़ी अलफलक हुजरीन बहम में बहम से बकम मुराद है, यानी गायब से हाजिर मुराद है। दुआ में दुआ हम उनकी दुआ आहित बहम यानी हलाकत वाओ बर्बादी के करीब आ गए, जैसे आहातत बखतियता यानी गुनाहों ने उसको सब तरफ से घेर लिया। फातबहम और वातिबहम के एक मानी हैं। अदवा अदुअन से निकला है। आयत यजल अल्लाह लिन्नास अलश्रिस्तिजालहम बिलखैर के मुतालिक मुजाहिद ने कहा कि इससे मुराद गुस्सा के वक्त आदमी का अपनी औलाद और अपने माल के मुतालिक ये कहना कि अल्लाह इसमें बरकत ना फरमा और इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो बाज़ औक़ात उनकी ये दुआ नहीं लगती, क्योंकि उनकी तकदीर का फ़ैसला पहले ही हो चुका होता है, और बाज़ औक़ात जिस पर बद्दुआ की जाती है वो हलाक वाओ बर्बाद हो जाता है। लिल्ज़ीना हसन व अल-हसनी में मुजाहिद ने कहा ज़ियाद से मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ामंदी मुराद है। दूसरे लोगों ने कहा वज़ीदा से अल्लाह का दीदार मुराद है। अलकबरिया से सल्तनत और बादशाही मुराद है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार कर दिया, फिर फ़रून और इसके लश्कर ने जुल्म करने के इरादा से उनका पीछा किया। वो सब समंदर में डूब गए और फ़रून भी डूबने लगा, तो वो बोला, मैं ईमान लाता हूँ कि कोई खुदा नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी मुसलमान होता हूँ। हदीस नंबर 4680। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद आशूरा का रोज़ा रखते थे। इन्होंने बताया कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फ़रून पर फ़तह मिली थी।
इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के हम उनसे भी ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, इसलिए तुम भी रोज़ा रखो। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब बाब आयत की तफसीर। खबरदार हो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा के देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें, वो गलती पर रहें, अल्लाह सीने के भेदों से वाकिफ़ है। खबरदार रहो वो लोग जिस वक्त छपने के लिए अपने कपड़े लपेटते हैं उस वक्त भी वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, बेशक वो उनके दिलों के अंदर की बातों से खूब खबरदार है। हदीस नंबर 4681। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन मोहम्मद बिन सबा ने बयान किया, कहा हमसे हुज्जाज बिन मोहम्मद आवर ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा कि मुझको मोहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र ने खबर दी और इन्होंने इब्न अब्बास से सुना कि आप आयत की क़ुरात इस तरह करते थे। आला इन्हम तस्नूनी सदूरहमी ने उनसे आयत के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने कहा कि कुछ लोग इसमें हिया करते थे कि खली हुई जगह में हाजत के लिए बैठने में, आसमान की तरफ सत्तर खोलने में, इस तरह सोबत करते वक्त आसमान की तरफ खोलने में परवरदिगार से शर्माता है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब बाब आयत की तफसीर। खबरदार हो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा के देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें, वो गलती पर रहें, अल्लाह सीने के भेदों से वाकिफ़ है। खबरदार रहो वो लोग जिस वक्त छपने के लिए अपने कपड़े लपेटते हैं उस वक्त भी वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, बेशक वो उनके दिलों के अंदर की बातों से खूब खबरदार है। हदीस नंबर 4682। तर्जुमा मुझसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने, इन्हीं मोहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र ने खबर दी कि इब्न अब्बास इस तरह क़ुरात करते थे। आला इन्हम तस्नूनी सदूरहम। मोहम्मद बिन इबाद ने पूछा, ए अब्बू अल अब्बास, तस्नूनी सदूरहम का क्या मतलब है? बतलाया कि कुछ लोग अपनी बीवी से हमबस्तरी करने में हिया करते और खला के लिए बैठते हुए भी हिया करते थे। इन्हीं के बारे में ये आयत नाज़ल हुई कि आला इन्हम तस्नूनी सदूरहम आखिर आयत तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब बाब आयत की तफसीर। खबरदार हो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा के देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें, वो गलती पर रहें, अल्लाह सीने के भेदों से वाकिफ़ है। खबरदार रहो वो लोग जिस वक्त छपने के लिए अपने कपड़े लपेटते हैं उस वक्त भी वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, बेशक वो उनके दिलों के अंदर की बातों से खूब खबरदार है। हदीस नंबर 4683। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि इब्न अब्बास ने आयत की क़ुरात इस तरह की थी, आला इन्हम यसनून सदूरहम लस्तख़फ़ून आला हन यस्तकशून सियाबाम। और इमरू बिन दीनार के अलावा और उन्होंने बयान किया इब्न अब्बास से कि यस्तकशून यानी अपने सर छुपा लेते हैं, सयाबहम यानी अपनी कौम से वो बदगुमान हुआ, वज़ाक़ बहम यानी अपने मेहमानों को देखकर वो बदगुमान हवा कि इनकी कौम इन्हें भी परेशान करेगी। बक़ते मन अललील यानी रात की सियाही में। और मुजाहिद ने कहा आनीब के मानी में रुजू करता हूँ, मुतवज्जह होता हूँ। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब बाब आयत की तफसीर। अल्लाह का अरश पानी पर था। हदीस नंबर 4684। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदो मेरी राह में खर्च करो तो मैं भी तुम पर खर्च करूँगा। और फरमाया अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, रात और दिन मुसलसल के खर्च से भी इसमें कम नहीं होता। और फरमाया तुमने देखा नहीं जब से अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया है मुसलसल खर्च किए जा रहा है, लेकिन इसके हाथ में कोई कमी नहीं हुई। इसका अरश पानी पर था और इसके हाथ में मीज़ान अदल है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। इतिराक बाब इफ्तियाल से है, अरूता से यानी मैंने उसको पकड़ पाया उसी से है। यारू मुजारे का सीगा और इतिरानी आखज़ा बनासी इतहा यानी इसकी हुकूमत और कब्ज़ा कुदरत में ही। अनीद अनूद और आनद सब के मानी एक ही हैं यानी सरकश मुखालिफ, और ये जब्बार की ताकीद है। इस्तिमरकम तुमको बसाया आबाद किया। अरब लोग कहते हैं आइमरता अलदार फ़ही उम्री यानी ये घर में ने उसको उम्र भर के लिए दे डाला। नकरहम आनकरहम और इस्तनकरहम सब के एक ही मानी हैं यानी उनको परदेसी समझा। हमीद फ़ईल के वज़न पर है, बमानी महमूद में सराहा गया और मजीद माजिद के मानी में है यानी करम करने वाला। सजील और सजीन दोनों के मानी सख्त और बड़ा के हैं। लाम और नून बहनें हैं, एक दूसरे से बदली जाती हैं। तमीम बिन मकबल शायर कहता है,
बाज़े पैदल दिन दहाड़े खुद पर ज़रब लगाते हैं, ऐसी ज़रब जिसकी सख्ती के लिए बड़े बड़े पहलवान अपने शागिर्दों को वसीयत किया करते हैं। आयत की तफसीर और मदयन की तरफ उनके भाई शोएब को भेजा। वाली मदयन यानी मदयन वालों की तरफ, क्योंकि मदयन एक शहर का नाम है जिसे दूसरी जगह फरमाया वासाल अलक़रियत यानी गाँव वालों से पूछ, वासाल अलैर यानी काफिला वालों से पूछ, वराकम ज़ुहरी यानी पसपुश्त डाल दिया, उसकी तरफ इल्तिफ़ात ना किया। जब कोई किसी का मकसद पूरा ना करे तो अरब लोग कहते हैं ज़हरत बहाजती और जलतनी ज़ुहरी। इस जगह ज़हरी का मानी वो जानवर या बर्तन है जिसको तो अपने काम के लिए साथ रखे। आराज़लना हमारे में से कमीने लोग। अजराम आजरमत का मसदर है या जरमत सुलासी मुजर्रद। फलक और फलक जुमा और मुफरद दोनों के लिए आता है। एक किश्ती और कई कश्तियों को भी कहते हैं। मुजराहा किश्ती का चलना ये आजरीत का मसदर है। उसी तरह मरसाहा आरसीत का मसदर है, यानी मैंने किश्ती थमा ली, लंगर कर दी। बाज़ों ने मरसाहा बफता मीम पढ़ा है रस्त से। उसी तरह मुजराहा भी जरत से है। बाज़ों ने मुजरिहा मरसीहा यानी अल्लाह इसको चलाने वाला है और वही इसका थमाने वाला है, ये मानूनी मफूल के हैं। रासियत के मानी जमी हुई के हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरिदगार पर झूठ बांधा था। खबरदार रहो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। हदीस नंबर 4685। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा और हश्शाम बिन अबी अब्दुल्लाह दस्तुई ने बयान किया, कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया और उनसे सफ़ून बिन मुहर्ज़ ने कि इब्न उम्र तवाफ़ कर रहे थे कि एक शख्स नामालूम आपके सामने आया और पूछा, ए अबू अब्दुर्रहमान, या ये कहा कि ए इब्न उम्र, क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी के मुताल्लिक़ कुछ सुना है जो अल्लाह ताला मोमिनीन से क़ियामत के दिन करेगा? इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मोमिन अपने रब के करीब लाया जाएगा। और हश्शाम ने यदनु अलमुम बजाय यदनी अलमुम कहा, मतलब एक ही है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना एक जानिब इस पर रखेगा और उसके गुनाहों का इकरार कराएगा कि फ़लाँ गुनाह तुझे याद है। बंदा अर्ज़ करेगा, याद है मेरे रब, मुझे याद है। 2 मरतबा इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तुम्हारे गुनाहों को छुपाए रखा और आज भी तुम्हारी मग़फ़िरत करूँगा। फिर इसकी नेकियों का दफ्तर लपेट दिया जाएगा। लेकिन दूसरे लोग या ये कहा कि किफ़ार, तो उनके मुताल्लिक़ माशर में ऐलान किया जाएगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था। और शैबान ने बयान किया, उनसे क़तादा ने कि हमसे सफ़ून ने बयान किया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और तेरे परवरिदगार की पकड़ उसी तरह है जब वो बस्ती वालों को पकड़ता है जो अपने ऊपर जुल्म करते रहते हैं, बेशक इसकी पकड़ बड़ी दिख देने वाली और बड़ी ही सख्त है। हदीस नंबर 4686। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमको अबू मुआविया ने ख़बर दी, उनसे बरीद बिन अबी बरदा ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ालिम को चंद रोज़ दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। रावी ने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, वकज़लक आख़ज़ रबकज़ा आख़ज़ अलक़री वही ज़ालिमा उन आख़ज़ा आलिम शदीद। और तेरे परवरिदगार की पकड़ उसी तरह है जब वो बस्ती वालों को पकड़ता है जो अपने ऊपर जुल्म करते रहते हैं, बेशक इसकी पकड़ बड़ी तकलीफ़ देने वाली और बड़ी ही सख्त है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब हदीस नंबर 4687। तर्जुमा। सूरत यूसुफ की तफसीर। और फ़ज़ील बिन नियाज़ ज़ाहिद मशहूर ने हसीन बिन अबदाल रहमन से रिवायत किया, इन्होंने मुजाहिद से इन्होंने कहा मुतका का मानी लातर्ज, और ख़ुद फ़ज़ील ने भी कहा कि मुतका हबशी ज़बान में लातर्ज को कहते हैं। और सुफियान बिन नीना ने एक शख्स नामालूम से रिवायत की, उसने मुजाहिद से इन्होंने कहा मुतका वो चीज़ जो छुरी से काटी जाए, मेवा हो या तरकारी। और क़तादा ने कहा ज़ो इल्म का मानी अपने इल्म पर अमल करने वाला। और सईद बिन जबीर ने कहा सवा एक माप है जिसको मुकुक अल-फ़ारसी भी कहते हैं, ये एक गिलास की तरह का होता है जिसके दोनों किनारे मिल जाते हैं। अजम के लोग इसमें पानी पिया करते हैं। और इब्न अब्बास ने कहा लो ला उन तफंदुन, अगर तुम मुझको जाहिल ना कहो। दूसरे लोगों ने कहा गोयाबा वो चीज़ जो दूसरी चीज़ को छुपावे, गायब कर दे, और जब कच्चा कुन जिसकी बंदिश ना हुई हो। वमा अनत बमम लना, यानी तो हमारी बात सच मानने वाला नहीं। आशदा वो उम्र जो ज़माना इन्हितात से पहले हो, 30 से 40 बरस तक अरब बोला करते हैं।
बलग आशदा व बलगवा आशदहम यानी अपनी जवानी की उम्र को पहुंचा या पहुंचे। बाजू ने कहा अशद शद की जुमा है। मुतका मसनद तकिया जिस पर तो पीने खाने या बातें करने के लिए टीका दे। और जिसने ये कहा कि मुतका लातर्ज को कहते हैं उसने गलत कहा। अरबी ज़बान में मुतका के मानी लातर्ज के बिल्कुल नहीं आए हैं। जब इस शख्स से जो मुतका के मानी लातर्ज कहता है असल बयान की गई कि मुतका मसनद या तकिया को कहते हैं तो वो इससे भी बदतर एक बात कहने लगा कि ये लफ्ज़ अलमुतक साकन तलता है। हालांकि मुतक अरबी ज़बान में औरत की शर्मगा को कहते हैं जहाँ औरत को ख़तना करते हैं और यही वजह है कि औरत को अरबी ज़बान में मुतका मुतक वाली कहते हैं और आदमी को मुतका का पीठ कहते हैं। अगर बिलफर्ज जुलेखा ने लातर्ज भी मंगवा कर औरतों को दिया होगा तो मसनद तकिया के बाद दिया होगा। शफ़हा यानी उसके दिल के शगाफ गिलाफ में उसकी मोहब्बत समा गई है। बाजू ने शफ़हा एन महमिला से पढ़ा है वो मशऊफ से निकला है। आसिफ का मानी माइल हवजाऊंगा झुक पड़ूंगा। आज़गा साहलाम परेशान ख्वाब जिसकी कुछ तबीर ना दी जा सके। असल में आज़गास ज़क़स की जुमा है यानी एक मुट्ठी भर घास तनके वगैरह इससे है। सूट स्वाद में ख़ज़बैदक ज़क़सा यानी अपने हाथ में सैंकों का एक मिठा ले। और आज़गा साहलाम में ज़क़स के ये मानी मुराद नहीं हैं बल्कि परेशान ख्वाब मुराद है। नमीर मीरा से निकला है उसके मानी खाने के हैं। वनज़दाद कील बैर यानी एक ऊँट का बूझ और ज़्यादा लेंगे। आवी अलैया अपने से मिला लिया अपने पास बैठा लिया। सुकायत एक माप था जिससे गला मापते थे। तफ्ता हमेशा रहोगे। फलमा इस्तियासु जब नाउम्मीद हो गए। वला तैसवा मनरूह अल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखो इसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो। खलसवा नजी अलग जाकर मशवरा करने लगे। निजी का मानी मशवरा करने वाला। इसकी जुमा इंजिया भी आई है इससे बना है यतना जून यानी मशवरा कर रहे हैं। निजी मुफरद का सीगा है और तस्निया और जुमा में निजी और इंजिया दोनों मस्तअमल हैं। हरजा यानी रंजवाओ गम तुझको गला डालेगा। तहससु यानी खबर लो लगाओ तलाश करो। मज़जात थोड़ी पौंजी। काशिया मन अज़ाब अल्लाह अल्लाह का आम अज़ाब जो सबको घेर ले। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर और अपना इनाम तुम्हारे ऊपर और औलाद याकूब पर पूरा करेगा जैसा कि वो उसे उससे पहले पूरा कर चुका है तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर। हदीस नंबर 4688। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया इन्होंने कहा हमसे अब्दुस्समद ने बयान किया उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम थे अलैहिम अस्सलाम। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत लक़द कान फ़ी यूसुफ वाख़ुता आयत लिलसाइलिन की तफसीर। हदीस नंबर 4689। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद ने बयान किया कहा हमको अब्दा ने खबर दी इन्हीं उबैदुल्लाह ने इन्हीं सईद बिन अबी सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि इंसानों में कौन सबसे ज़्यादा शरीफ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा शरीफ वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमारे सवाल का मकसद ये नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर सबसे ज़्यादा शरीफ यूसुफ अलैहिस्सलाम ही नबी अल्लाह इब्न नबी अल्लाह इब्न नबी अल्लाह इब्न खलील अल्लाह। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमारे सवाल का ये भी मकसद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अरब के ख़ानदानों के मुताल्लिक़ तुम मालूम करना चाहते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहलियत में जो लोग शरीफ समझे जाते थे इस्लाम लाने के बाद भी वो शरीफ हैं जबकि दीन की समझ भी इन्हें हासिल हो जाए। इस रिवायत की मुताबिक अब्बासामा ने उबैदुल्लाह से की है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। याकूब ने कहा तुमने अपने दिल से खुद एक झूठी बात खुड़ ली है। हदीस नंबर 4690। तर्जुमा हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह अवैस ने बयान किया कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया उनसे सालेह बिन कीसान ने उनसे इब्न शहाब ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीरी ने बयान किया उनसे यूनुस बिन यजीद एली ने बयान किया कहा कि मैं ज़हरी से सुना इन्होंने रू बिन ज़ुबैर सईद बिन मुसैब अलक़मा बिन वक़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा आयशा के इस वाक़या के मुताल्लिक़ सुना जिसमें तहिम्मत लगाने वालों ने उन पर तहिम्मत लगाई थी और फिर अल्लाह ताला ने उनकी पाकी नाज़ल की। इन तमाम लोगों ने मुझसे इस क़िस्सा का कुछ टुकड़ा बयान किया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया कि अगर तुम बरी हो तो अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारी पाकी नाज़िल कर देगा, लेकिन अगर तो आलूदा हो गई है तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर और इसके हुज़ूर में तौबा कर। आयशा ने बयान किया कि मैंने इस पर कहा, अल्लाह की कसम, मेरी और आपकी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जैसी है, और इन्हीं की कही हुई बात में भी दोहराती हूँ कि फसबर जमील वालला अलमुस्तान अलीमा तस्फून, सो सब्र करना ही अच्छा है, और तुम जो कुछ बयान करते हो इस पर अल्लाह ही मदद करेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयशा की पाकी में सूरत अल-नूर की नज़ीम जावा बालाफिक से आखिर तक 10 आयत उतारी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। याकूब ने कहा, तुमने अपने दिल से खुद एक झूठी बात खुड़ ली है। हदीस नंबर 4691। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे हसीन बिन अबदाल रहमन ने, उनसे अबू वाइल शकीक बिन सलमा ने कहा कि मुझसे मुसर्रुख बिन अजद ने बयान किया, कहा कि मुझसे रूमान ने बयान किया, वो आयशा की वालिदा हैं। इन्होंने बयान किया कि मैं और आयशा बैठे हुए थे कि आयशा को बुखार चढ़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गालिबन ये उन बातों की वजह हुआ होगा जिनका चर्चा हो रहा है। रूमान ने अर्ज़ किया कि जी हूँ। इसके बाद आयशा बैठ गईं और कहा कि मेरी और आप लोगों की मिसाल याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों जैसी है, और आप लोग जो कुछ बयान करते हो इस पर अल्लाह ही मदद करे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और जिस औरत के घर में वो थे वो अपना मतलब निकालने को इन्हीं फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और बोली कि बस आ जा। हदीस नंबर 4692। तर्जुमा। मुझसे अहमद बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन उम ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, उनसे अब्बू वाइल ने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ही तलक पढ़ा और कहा कि जिस तरह हमें ये लफ्ज़ सिखाया गया है उसी तरह हम पढ़ते हैं। मुसुआ यानी इसका ठिकाना, दर्जा। आल्फिया यानी पाया उसी से है। आलफवा आबा हम और आलफीना दूसरी आयतों में, और इब्न मसूद से सूरत अल-साफ़ात में बल अजबत व सफ़रून मनक़ूल है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और जिस औरत के घर में वो थे वो अपना मतलब निकालने को इन्हीं फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और बोली कि बस आ जा। हदीस नंबर 4693। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे मुस्लिम ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि कुरैश ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में ताख़ीर की तो आपने उनके हक़ में बद्दुआ की कि अल्लाह इन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना का सा कहत नाज़िल फरमा। चुनाचा ऐसा कहता पड़ा कि कोई चीज़ नहीं मिलती थी और वो हड्डियों के खाने पर मजबूर हो गए थे। लोगों की उस वक्त ये कैफियत थी कि आसमान की तरफ नज़र उठा के देखते थे तो भूख व प्यास की शिद्दत से धुंसा नज़र आता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ारतक़ब यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन, तो आप इंतज़ार कीजिए उस रोज़ का जब आसमान की तरफ एक नज़र आने वाला धुआं पैदा हो। और फरमाया, अना काशफ़ु अलज़ा कलीला इनकम आदुन, बेशक हम इस अज़ाब को हटा लेंगे और तुम भी अपनी पहली हालत पर लौट आओगे। इब्न मसूद ने कहा कि अज़ाब से यही कहत का अज़ाब मुराद है, क्योंकि आखिरत का अज़ाब काफिरों से टलने वाला नहीं है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान हदीस नंबर 4694। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए कि इन्होंने एक ज़बरदस्त सहारे की पनाह लेने के लिए कहा था, और अगर मैं कैद खाने में इतने दिनों तक रह चुका होता जितने दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे थे तो बुलाने वाले की बात रद्द ना करता, और हमको तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनिस्बत शक होना ज़्यादा सज़ावार है। जब अल्लाह पाक ने उनसे फरमाया, आउलम तुम काल बिल्ली वलकन लीतमन कलबी, कि क्या तुझको यकीन नहीं? इन्होंने कहा, क्यों नहीं, यकीन तो है पर मैं चाहता हूँ कि और इत्मीनान हो जाए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। यहाँ तक कि जब पैगंबर मायूस हो गए कि अफसोस हम लोगों की निगाहों में झूठे हुए, आखिर तक। हदीस नंबर 4695। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह अवैस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, और उनसे आयशा ने बयान किया, रू ने उनसे आयत हत्ता अज़ा इस्तिया सलरसल के मुताल्लिक़ पूछा था। रू ने बयान किया कि मैंने पूछा था आयत में कज़बू तख़फ़ीफ़ के साथ या कज़बू तशदीद के साथ। इस पर आयशा ने कहा कि कज़बू तशदीद के साथ। इस पर मैंने उनसे कहा कि अनबिया तो यकीन के साथ जानते थे कि उनकी कौम इन्हीं झटला रही है। फिर ज़नवा से किया मुराद है? इन्होंने कहा, अपनी ज़िंदगी की कसम, बेशक पैगंबरों को इसका यकीन था।
मी ने कहा कस्बू तखफीफ जाल के साथ पढ़नी तो क्या कबाहत है। इन्होंने कहा मुआज़ला, कहीं पैगंबर अपने परवरिदगार की निस्बत ऐसा गुमान कर सकते हैं। मी ने कहा अच्छा इस आयत का मतलब क्या है। इन्होंने कहा मतलब यह है कि पैगंबरों को जिन लोगों ने माना उनकी तस्दीक की जब उन पर एक मुद्दत दराज तक आफत और मुसीबत आती रही और अल्लाह की मदद आने में देर हुई और पैगंबर उनके ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए जिन्होंने उनको झटलाया था और ये गुमान करने लगे कि जो लोग ईमान लाए हैं अब वो भी हमको झूठा समझने लगेंगे, उस वक्त अल्लाह की मदद आन पहुंची। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब अल्लाह ताला का कौल की यहाँ तक कि जब रसूल अल्लाह ना उम्मीद हो गए। हदीस नंबर 4696। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा हमको शोएब बिन अबी हमजा ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझको रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि मैंने आयशा से कहा हो सकता है ये कस्बू तखफीफ जाल के साथ हो, तो इन्होंने फरमाया मुआज़ला। फिर वही हदीस बयान की जो ऊपर गुजरी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब हदीस नंबर 4697। तर्जुमा इब्न अब्बास ने कहा हद का मानी बुलाने वाला, हिदायत करने वाला, नबी व रसूल मुराद हैं। और मुजाहिद ने कहा सदीद का मानी पीप और लहू। और सुफियान बिन हीना ने कि अज़कर व नोमा अल्लाह अलैकुम का मानी यह है कि अल्लाह की जो निमतें तुम्हारे पास हैं उनको याद करो और जो अगले वाक़यात इसके कुदरत के हुए हैं। और मुजाहिद ने कहा मन कलमा सालतमु का मानी यह है कि जिन जिन चीज़ों की तुमने रग़बत की या बगुनाह औजा इसमें कीजी पैदा करने की तलाश करते रहते हैं। वास्ताज़न रबकम जब तुम्हारे मालिक ने तुमको ख़बरदार कर दी जतला दिया। रदवा आयदीहम फ़ी आफ़वाहम ये अरब की ज़बान में एक मसल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का जो हुक्म हुआ था इससे बाज रहे, बजा ना लाए। मकामी वो जगह जहाँ अल्लाह पाक उसको अपने सामने खड़ा करेगा। मन वरा सामने से लकम तबन तबा ताबे की जुमा है जैसे ग़ैब गायब की। बमसर ख़कम अरब लोग कहते हैं इस्तिस्रख़नी यानी उसने मेरी फ़रियाद सुन ली। यस्तिस्रख़ा इसकी फ़रियाद सुनता है दोनों सराख से निकले हैं, सराख का मानी फ़रियाद। वला खलाल खाललता का मसदर है और खला की जुमा भी हो सकता है, यानी उस दिन दोस्ती ना होगी या दोस्ती ना होंगी, इज्तसत जड़ से उखाड़ लिया गया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत कशजराती तासलहा साबित वफ़रहा फ़ी अलसमा तूती आकलहा कलहन की तफसीर। हदीस नंबर 4698। तर्जुमा मुझसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अच्छा मुझको बतलाओ तो वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान की मानिंद है जिसके पत्ते नहीं गिरते, हर वक्त मेवा दे जाता है। इब्न उम्र कहते हैं मेरे दिल में आया वो खजूर का दरख्त है, मगर मैंने देखा कि अबू बकर और उम्र बैठे हुए हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया तो मुझको इन बुजुर्गों के सामने कलाम करना अच्छा मालूम नहीं हुआ। जब इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया वो खजूर का दरख्त है। जब हम इस मजलिस से खड़े हुए तो मैंने अपने वालिद उम्र से अर्ज़ किया, बाबा जान, अल्लाह की कसम मेरे दिल में आया था कि मैं कह दूँ वो खजूर का दरख्त है। इन्होंने कहा फिर तूने कह क्यों ना दिया। मैंने कहा आप लोगों ने कोई बात नहीं की, मैंने आगे बढ़कर बात करना मुनासिब ना जाना। इन्होंने कहा वाह अगर तो उस वक्त कह देता तो मुझको इतने लालून का माल मिलने से भी ज़्यादा खुशी होती। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर यानी अल्लाह ईमान वालों को इसकी पकी बात की बरकत से मजबूत रखता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हदीस नंबर 4699। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अलक़मा बिन मरसिद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने साद बिन अबीदा से सुना और इन्होंने बरा बिन आज़ब से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान से जब कब्र में सवाल होगा तो वो गवाही देगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला के इरशाद यसबत अल्लाह अज़ीन आमन व बालकुल अलसाबत फ़ी अलहयात अलदनिया व फ़ी अलआखिरा, अल्लाह ईमान वालों की इस पकी बात की बरकत से मजबूत रखता है, दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी का यही मतलब है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब हदीस नंबर 4700। तर्जुमा मुजाहिद ने कहा सिरात अली मुस्तकीम का मानी सच्चा रास्ता जो अल्लाह तक पहुँचता है, अल्लाह की तरफ जाता है, लबामाम मुबीन यानी खले रास्ते पर। और इब्न अब्बास ने कहा लमरक का मानी यानी तेरी ज़िंदगी की कसम। कौम मनकरून लूत ने उनको अजनबी परदेसी समझा। दूसरे लोगों ने कहा किताब मालूम का मानी मुअय्यन मियाद।
लोमा तातीना क्यों हमारे पास नहीं लाता। शी अमती और कभी दोस्तों को भी शी कहते हैं और इब्न अब्बास ने कहा यह रून का मानी दौड़ते जल्दी करते। लिलमुतसमीन देखने वालों के लिए। सिकरत झांकी गईं। बरूजा ब्रज यानी सूरज चंद की मंजिलें। लवाका मलाका के मानी में है जो मलफ्त की जुमा यानी हामिला करने वाली। हमात की जुमा है बदबूदार कीचड़। मसनून कालिब में ढाली गई। ला तौजल मत डर। दाबर अखर दम। लबामा मुबीन इमाम वो शख्स जिसकी तो पैरवी करे इससे राह पाए। अलसीहा हलाकत के मानी में है।